What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 23rd of March, and today is a bloodbath Monday for the Indian markets. On Friday, the markets made a high of 23,350, but today we are closing at somewhere around 22,500. So just in a span of less than 1.5 trading sessions, the market has dropped almost 850 points. So currently the markets are trading at 22,500, so which means the markets are almost 4,000 points from their all-time high, which means that the Nifty is currently in a drawdown of more than 16% from their top. So this is not a good sign for the bulls, and India VIX has shot up another 17%, and currently the India VIX is trading around 27, and gold, silver, heavy metals all are taking a beating. And usually gold and silver are considered safe haven instruments, and they are considered to be the hedge against equity. So whenever equity is falling, it is gold and silver which kind of hold your portfolio afloat. But this time even the gold and silver have taken a lot of beating, and just today gold has fallen more than 7.5% and silver has fallen almost 10%, while the equity is falling somewhere around 2.5 to 3%. So it's definitely not a good view of the portfolio for the investors, because their portfolio is bleeding from all the fronts. And the fun fact is, 4 out of 4 Mondays in the month of March have seen a gap down opening, because weekend पे कुछ ना कुछ news flow आ रहा है, weekend पे कुछ ना कुछ war escalation हो रहा है, and because of that every Monday in the month of March has seen a gap down opening. And even today the markets are closing almost at their day's low, and which is not a good sign, because आज अगर थोड़ा भी अगर negative news आता है तो then expect another 150-200 points gap down tomorrow at least. Talk about tomorrow's Nifty weekly expiry. Today was Nifty's 1DT, and straddle जो open हुआ somewhere around 450, and throughout the day there was absolutely no decay. Markets completely chop कर रहा था wall wise, but by the end of the day of course there has been some amount of decay, and straddle 400 के आसपास close दे रहा है, which means that tomorrow the straddle might be opening 200 or lower, because 200 points overnight crush definitely मिलने वाला है, because the most of the risk that the Indian markets have is mostly the overnight risk. Because जब हमारी markets बंद होते हैं and US markets and European markets open होते हैं, and उस time में कुछ news आ जाता है, तो then our markets are closed, and most of that risk is in the form of gaps, either gap up or gap down. So because of that the risk premium is pricing a lot of overnight uncertainty, and because of that 400 rupees पे ज़रूर close दे रहा है. That doesn't mean that कल के expiry में हमको अच्छा खासा प्रीमियम ट्रेड करने को मिलेगा, बिकॉज जब मार्केट्स कल ओपन होंगे एक्सपायरी पे, वील बी सीइंग एटलीस्ट 50% ऑफ दिस प्रीमियम एरोडिंग राइट एट द फर्स्ट टिक. सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स सी कल के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान बना सकते हैं. डेली चार्ट पे द मार्केट्स आर डेफिनेटली नॉट लुकिंग गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बुल्स. वी हैव ऑलरेडी मेड a dip of 16% or 15% from the all-time highs, and वो जो काफ़ी क्विक टाइम पे मार्केट्स ने एक डिप दिया है. द विक्स इज ट्रेडिंग अराउंड 27, and 22,000 will be the next, the apparent support for the markets. And मैं कह रहा था कि 23,000 के नीचे एक डेली क्लोज मिलता है तो अनदर 1,000 पॉइंट्स मार्केट्स जाने वाला है. बट 23,000 के आसपास मार्केट्स ने 2 बार सपोर्ट लिया, एंड फ्राइडे के दिन 23,350 के आसपास एक हाई मार के अगेन डे लो के आसपास क्लोज हुआ. एंड आई वॉज talking about how the markets are going into the weekend with a lot of anxiety, because markets में anxiety नहीं होता है तो फ्राइडे के दिन जो है डे हाई के आसपास मार्केट्स क्लोज हो जानी चाहिए. बट फ्राइडे के जो कैंडल था वो डे लो के आसपास क्लोज हुआ, एंड दैट प्रॉम्प्टेड अनदर गैप डाउन बिकॉज द वॉर काइंड ऑफ एस्केलेटेड. एंड जिस हिसाब से वॉर एस्केलेट हुआ है, द मार्केट एटलीस्ट एट दिस पॉइंट फैक्टर्स डिस्काउंट्स दैट देर इज़ नो गोइंग बैक, एंड सीज फायर की जो बात होने दो या पीस की बात होने दो, वॉर रुकने की जो बात होने दो, अभी फिलहाल के टाइम पे नज़र नहीं आने वाला है, एटलीस्ट फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर. सो वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लड बाथ. एंड एज आई वाज टॉकिंग, गोल्ड भी आज 7%, 7.5% डाउन है, सिल्वर भी आज 9.5-10% डाउन है, एंड द ETFs आर काइंड ऑफ ओवर रिएक्टिंग, बिकॉज आज सिल्वर बीस है वो 12% डाउन था, एंड गोल्ड बीस है समवेयर अराउंड 8% डाउन था. एंड यू कैन नोटिस दैट द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर अप. सो इट्स chaos all around. And अगर लोअर टाइम फ्रेम पे बात करें तो लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किए थे, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देन फर्स्ट 5 मिनट का जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है उस ट्रेड हमको लेना चाहिए, ईदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अपसाइड, दोनों तरफ हमको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला ट्रेड करना चाहिए ऑन अ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल. तो आप देख सकते हैं कि 22,650 वॉज द लो ऑफ दिस कैंडल, एंड जैसे 10 o'clock के आसपास वो लो तोड़ा, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गया है. ऑफ कोर्स आपको एक बड़ा वाला ट्रेंडिंग डे देखने को नहीं मिला, बिकॉज मोस्ट ऑफ दैट whatever the move
जो बेरिश मूव आना था वो गैप डाउन में हो गया, बट नॉनदलेस 23,650 से लेके 23,450 तक ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट का एक मूव आपको कैप्चर करने को मिल गया होगा. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप ट्रेड किए होंगे एंड वेयर डिड यू एंड फॉर द डे. सो टू टॉक अबाउट द स्ट्रैडल हमने डिस्कस किए थे कि अगर 500 के आसपास आता है तो देन यू कैन ट्रेड सम अमाउंट ऑफ स्ट्रैडल्स, बट 500 के आसपास नहीं आए. 480 के आसपास एक डबल टॉप बना के मार्केट 480 से ही आज एक डीके दिया है. एंड एज आई वाज मेकिंग द इंट्रो वीडियो द स्ट्रैडल वाज ट्रेडिंग एट 400 एंड विद इन द नेक्स्ट 5 minutes now the straddle is trading at 380. There is just 2 minutes for the markets close and most probably 380 390 के आसपास ही straddle close होने वाला है. And expect another 180 200 points of overnight crush depending upon where the market's gonna open, because markets ने एक gap down होने के बावजूद, एक बड़ा वाला gap down होने के बावजूद भी markets ने एक डे लो के आसपास होवर कर रहा है. So there is a very high probability that कल भी markets gap down ही खुलने वाला है. There is, if I have to ascertain the probability, then there is 80% chance that कल मार्केट्स गैप डाउन खुलने वाला है. विथ व्हाट एक्सटेंट अगेन द न्यूज़ हैज़ टू डिसाइड. आज ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है वो कितना एस्केलेट होगा या कितना डी एस्केलेट होगा उसके बेसिस पे होने वाला है. बट प्राइस एक्शन वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट द मार्केट्स आर गोइंग टू ओपन अ गैप डाउन टुमारो. सो कहाँ पे ओपन होने वाला है ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट 22,000 लेवल के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है. तो एक्सपेक्ट वन स्मॉल बाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम द बेयर्स एंड 22,000 से थोड़ा बहुत मार्केट में एक अप मूव, एक अपसाइड, एक पुल बैक देखने को नज़र आ सकता है. समथिंग लाइक दिस. जब मार्केट 23,000 पे आया था तो तब हमको एक 850 पॉइंट्स का एक पुल बैक देखने को मिला था एंड अगेन द मूव कंटिन्यूड एंड सिमिलर काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन वी माइट गेट टू सी एट 22,000 लेवल्स एज वेल. सो टू टॉक अबाउट टुमारोज एक्सपायरी, इफ द स्ट्रैडल ओपन्स बिलो 170 or 180, then be very careful to trade any short gamma trades right at the first tick. delta neutral short gamma trades करने के लिए थोड़ा हिचकिचाना चाहिए if at all the straddle opens at 180. अगर 220 के ऊपर अगर खुलता है तो then you'd be getting a lot of skews. OTMs पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सबको मिलने वाला है. You can start trading right away at the opening tick अगर 220 के ऊपर मिलता है. But again 220 के ऊपर अगर straddle open हो रहा है it means that we might be opening at a significant gap down as well. So अगर flat खुलता है या gap up खुलता है तो then expect a significant amount of overnight crush in the straddles. but अगर gap down खुलता है, significant gap down, मान लो कि 22,500 के आसपास मार्केट्स आज क्लोज दे रहा है, तो imagine 22,200 या 22,200 के नीचे अगर straddle मार्केट्स खुलता है तो then there is a probability, there is a possibility that the straddles would be opening above 200, which would give a decent amount of range, because 22,500 will be acting as some sort of a resistance for tomorrow's expiry and 22,000 level which is a round number. and at the same time अगर हम लोग थोड़ा zoom out करके वन डे डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो 22,000 will also be acting as some sort of a support. ये 22,000 के आसपास एक सपोर्ट जैसे भी काम करने वाला है, राउंड नंबर भी है, एक्सपायरी डे भी है. सो अगर मार्केट 22,200 या 22,250 के आसपास अगर कल ओपन करता है तो देन इट विल बी अ डिसेंट बेट फॉर द एक्सपायरी डे ट्रेडर्स. तो 22,250 या 22,300 का स्ट्रैडल्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एंड वंस द इनिशियल बैलेंस इज फॉर्म्ड उसके बाद हमारा जो रेंज है और भी थोड़ा प्रिसाइज बनने का चांसेस रहता है. सो 3 सिनेरियोज है. वन इज अ बिग गैप अप, one is a minor gap up and this low being taken out within the first half an hour, and the third is the big gap down. So तीनों सिनेरियोज को हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन फ्रंट पे. मान लो कि एक बड़ा गैप अप खुलता है, मान लो कि बड़ा गैप अप मेरे हिसाब से क्या होगा, तो इस स्विंग के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो देन एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू स्टे बिटवीन 22,900 and 22,500. So this 400 points will be the range for the day. But of course once first 1.5 hour का प्राइस एक्शन हो जाता है, 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन हो जाता है, उसके बाद उस 90 मिनट का रेंज को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एंड उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 2 o'clock के बाद आता है तो देन वी कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. ठीक है. दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट्स फ्लैट खुलेगा. व्हेन आई से फ्लैट, इट इज ईदर फ्लैट, डेड फ्लैट एट 22,500 और इवन एनीवेयर बिलो 22,600. तो यहां पे अगर खुलेगा एंड 9:45 के पहले या 10 o'clock के पहले इस लो को तोड़ेगा, देन वी हैव टू बी ट्रेडिंग विद अ बेरिश बायस. बेरिश बायस मतलब ये नहीं कि इसके बाद भी मार्केट्स हमको 500 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी बट आई वुडंट से दैट इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. सो मेरे पास बेरिश ट्रेड्स लेने के लिए मतलब मैं क्या करूंगा, थोड़ा जो ये फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल का जो हाई बनता है दैट एंड उसका टॉप वाला जो कॉल्स है उसको मैं बेचूंगा अंटिल अनलेस द मार्केट कम्स बैक विद इन दिस रेंज. तो मान लो मार्केट्स यहाँ पे डे लो ब्रीच किया एंड उसके बाद मार्केट्स अगर वापस आ जाता है देन यू कैन इवन स्टार्ट शॉर्टिंग द पुट्स एट द मनी और इवन वन स्ट्राइक ओटीएम पुट्स को भी हम लोग शॉर्ट करके इसको स्ट्रैंगल जैसे ट्रेड कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम द मोमेंट द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो हाई है अगर वो
break हो जाता है, then expect that some sort of a short covering rally might also be seen on an intraday basis. How it will materialize on a positional basis, क्या वहाँ से bottom बना के market ऊपर जाना start करेगा, that we cannot say at this point, but at least on an intraday basis price action बहुत ही क्लीन एंड सिंपल रहना चाहिए. तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल इधर यहाँ पे गैप अप मिलता है एंड 9-10 o'clock के अंदर ये तोड़ता है, तो देन ट्राई टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बाय सेलिंग द कॉल्स अबव दिस लेवल. एंड अगर मार्केट वापस इस रेंज के अंदर आता है तो देन जहाँ पे मार्केट्स ने रिवर्स लिया है उसका पुट्स को हम लोग शॉर्ट करके इसको शॉर्ट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड वंस द मार्केट स्टार्ट्स ब्रेकिंग दिस हाई देन अगेन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. स्पेशली अगर 2 o'clock के बाद ये जो कैंडल है, कैंडल का हाई है, अगर वो तोड़ देता है तो देन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. प्रोबेबली इवन यू कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ अ हीरो जीरो काइंड ऑफ अ ट्रेड्स इफ यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग रैली. नाउ द थर्ड सिनेरियो व्हिच इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो फॉर टुमारो इज अ गैप डाउन. तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है 22,400 या उसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो देन एक्सपेक्ट दिस टू बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस. सो एनी पुल बैक टुवर्ड्स दिस लेवल कैन बी सोल्ड इनटू एंड एट द सेम टाइम 22,200 के आसपास मार्केट्स होल्ड कर जानी चाहिए. तो मैं डाउन साइड का जो है कहाँ पे मार्केट्स रिवर्ट करेगा वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ. सो अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा, लेट्स से मार्केट्स ओपन गैप डाउन समवेयर अराउंड 22,400 लेवल्स एंड मार्केट यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाएगा 22,300 के आसपास, 22,250 कहीं पे भी. तो व्हेन द मार्केट गैप्स डाउन देन फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को हम लोगों को देखना चाहिए. अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर लो ब्रीच कर देता है देन स्टार्ट सेलिंग द कॉल्स अराउंड दीज लेवल्स एंड ट्राई टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट्स. एंड जब मार्केट्स इस 5 मिनट का जो कैंडल का रेंज के अंदर आ जाता है, बिकॉज अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो देन दिस 5 मिनट कैंडल विल बी अ ह्यूज रेंज, वाइड रेंज कैंडल जस्ट लाइक टुडे. तो आज भी मैंने कहा था कि फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है थोड़ा वाइड रेंज कैंडल होने वाला है अगर गैप डाउन खुलता है तो. एंड आज देख सकते हैं कि लाइक 22,850 का जो हाई मारा एंड 22,650 का जो लो मारा, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का जो कैंडल बना फर्स्ट 5 मिनट का. सो सिमिलर काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन कल भी फॉर्म हो सकता है इफ द मार्केट गैप्स डाउन सिग्निफिकेंटली. सो गैप डाउन खुलता है तो फर्स्ट 5 मिनट का जो लो अगर ब्रीच होता है तो देन अगेन स्टार्ट सेलिंग द कॉल्स एंड गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. बट अगर मार्केट वापस 5 मिनट के कैंडल के अंदर रेंज के अंदर आ जाता है देन स्टार्ट सेलिंग द पुट्स एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड अंटिल अनलेस द डेज हाई इज टेकन आउट. सो कल प्रीमियम के बेसिस पे नहीं बट स्पॉट के प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोगों को ट्रेड करना है. ट्रेड विथ स्मॉलर साइज बिकॉज वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी एंड द मार्केट्स कैन शो यू सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रैपिंग. मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, मार्केट में आपको थोड़ा सरप्राइज मूव्स भी आ सकता है बिकॉज हमारे पास लास्ट 3 एक्सपायरीज है. इसके बाद वी हैव अ सेंसेक्स monthly expiry and we have a Nifty monthly expiry on Monday and we have Sensex back to back expiries because कल का Nifty expiry के बाद अगले दिन ही Sensex का expiry है because Thursday is a holiday. Alright, so trade cautiously tomorrow, trade carefully because the VIX is already trading around 27 levels and ये जो VIX में मतलब जो प्रीमियम जो exactly रिस्क प्रीमियम जो कमांड कर रहा है mostly it is on a positional basis. इंट्राडे में even now there is not decent amount of premium and market हमेशा almost 99% of the time जितना IVs बोल रहा है उससे ज़्यादा ही realized volatility play out हो रही है. So it doesn't mean that वो markets में आपको expiry के दिन 200 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में पैसे थाली में परोस के मिलने वाला है. It's not like that. The markets will make you work hard for each and every penny that you're gonna earn. So trade with caution, trade with smaller size, trade with smaller exposure and I'll see you after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.